Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is Golden Rules to Live Longer. So let's begin. The experience of a writer E.V. Knox have been modified here for the benefit of the readers. Everybody wants to live long and nobody wants to die early. Our body is a delicate automatic machine, so to keep it fit and in working order for a long time, we should follow certain rules. Given below are the golden rules of a long life. So students, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? ये है एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर E.V. नोक्स के थ्रू, जिन्होंने मॉडिफाइड किया है काफ़ी बेनिफिट्स को कुछ रीडर्स के लिए. सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव लॉन्ग एंड नोबडी वॉन्ट्स टू डाई अर्ली. क्या कोई चाहता है मरना जल्दी? नहीं, है ना. सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव लॉन्ग, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपनी बॉडी को फिट और वर्किंग ऑर्डर के लिए लॉन्ग टाइम के लिए कुछ रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ रूल्स है. सो फर्स्ट रूल इज डाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बी वेरी केयरफुल अबाउट यू ईट. Eat and drink all that you require and nothing else. Moderation keeps you fit for a longer period and excess makes many of our system weak. When you have finished eating or drinking, stop and don't take anything else. When you want some more, take it again. Whenever you need, eat and drink, but not more than you need. Always remember the golden rules: eat to live and don't live to eat. So students, डाइट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें केयरफुल रहना चाहिए. किस चीज़ के लिए? जो हम खाते हैं, जो पीते हैं. ओके, ईट एंड ड्रिंक. सो जो रिक्वायर होती है हमारी बॉडी को, वही चीज़ हमें देनी चाहिए, है ना. सो वैसी चीज़ें जो प्रोटीन, कार्बो, सब चीज़ से फुलफिल हो, वही चीज़ हमें पीनी चाहिए और वही चीज़ खानी चाहिए. ठीक है. तो हमें ध्यान रखना क्या पड़ेगा? ईट टू लिव एंड डोंट लिव टू eat. Now the question is what we should eat and what we should not. Eat everything but according to the capacity of your stomach and to the adaptability of your system. Everything which nature has provided us to eat has one or the other advantage. So we should try to taste everything. Natural food is more beneficial than artificial or man-made food. So यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताई गई है. यहाँ पे हमें वही चीज़ खानी चाहिए. किसके अकॉर्डिंग? अपने स्टमक के अकॉर्डिंग, है ना. जितनी कैपेसिटी ऑफ योर स्टमक है. सो एवरीथिंग मच. क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे? जो नेचुरली, ठीक है, जो नेचुरल फूड होता है वही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बॉडी की. अदरवाइज हम क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियल और मैनमेड फूड को ही खाना पसंद करते हैं, जबकि वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं. Delicious and heavy dishes are generally harmful. Plenty of fruits, green vegetables, milks, etc. are useful food. But according to the climate and season, they may change. Knowledge of vitamin is very essential. Different vitamins are useful in different ways. Our diet should contain all types of vitamins and minerals in proper. So delicious and heavy dishes जो होती है बच्चे generally कैसी होती है? Harmful. So plenty of fruits, green vegetables, milks are useful food. According to the climate ही और season के अकॉर्डिंग ही हमें उनको खाना चाहिए. ठीक है. समर में कौन से फ्रूट्स होते हैं? तो आपने देखा होगा मैंगोज आते हैं, ग्रेप्स है, तो वही हमें खाने चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू सीजन वी फॉलो द डाइट्स. और नॉलेज ऑफ विटामिन इज़ वेरी एसेंशियल, कि कौन से विटामिन हमारे लिए यूजफुल है. ठीक है. और उनको ध्यान रखते हुए हमें अपनी डाइट को ही उसमें कंटेन करना चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स को देखकर. Proportions, this type of diet is called a balanced diet. So for keeping our system and body balanced, we should always have a balanced diet. So balanced diet क्या होता है बच्चे? जिसमें कार्बो, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, सब चीज़ें बैलेंस पर हो. ठीक है. मीन्स हम एक क्वांटिटी के तौर पर ही उनको खाएं. ये ना किसी चीज़ की क्या करें, हम एक्सेस खा लें या किसी चीज़ की हमारे लिए डेफिशिएंसी हो जाए, तो ऐसे नहीं अप्लाई करना हमें फूड को. See the chart given below to get a first-hand knowledge of vitamins. So first is vitamin A is to be found. So A in green leaves, example cabbage, parsley, lettuce, cereals, leeks. In yellowish and red fruits and vegetables, example orange,
tomatoes, carrots, etc. So ये चीज़ें क्या है बच्चे? ये चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है. Then second one is vitamin B is to be found. कहाँ से मिलता है हमें? So in all cereals, nuts, milk, many vegetables. Example, lettuce, cabbage, peas, beans, etc. Vitamin C is to be found in all fresh vegetables and fruits, particularly in Brussels sprouts, cabbage, cauliflowers, onions, spinach, potatoes, etc. Vitamin D is to be found in milk. Very good. So vitamin D के लिए हम क्या? Milk पिएंगे. Vitamin E is to be found in the embryo of all cereals, especially of wheat, green plants, especially lettuce, cereals, green peas, beans and milk. Second is smoking. So smoking. Smoking is very injurious for health. Cigarettes have a very violent stuff called nicotine. One who smokes absorbs a sufficient amount of nicotine with every cigarette he smokes. It constricts arteries, particularly in the hands and feet. Thus, the pressure against which the heart works is raised and may cause a heart attack. Besides this, excess smoking affects our lungs adversely. A large amount of carbon dioxide is taken into our system rather than oxygen. Thus, the blood, which should be purified by oxygen, is spoiled when the carbon dioxide mixes in it. A smoker who smokes in excess suffers from cough and asthma. Neither can he sleep soundly, nor does he let others sleep. So, everybody should avoid smoking. If you can't stop yourself from smoking completely, impose certain restrictions upon yourself. Smoke only a pipe now and then. Don't smoke in the company of your friends, otherwise they will compel you to smoke. Have a long interval between two smokes. Don't smoke in the theaters, in the church, in the reading room, to the lift or at such other places where people assemble. So यहाँ पर स्मोकिंग को बच्चे क्या बताया गया है? प्रोहाइबिटेड और काफ़ी इंजीरियस है फॉर हेल्थ के लिए. स्पेशली जैसे सिगरेट्स होती है तो वो क्या करती है? वॉलेंट स्टफ एंड उसके अंदर पाया जाता है निकोटिन. ठीक है, और निकोटिन क्या करता है हमारे लिए बॉडी को? क्या करता है वो? एवरी सिगरेट ही स्मोक्स ही कंसिस्ट आर्टरीज, और आर्टरीज के अंदर जाता है पर्टिकुलरली हैंड्स एंड फीट. और उसके बाद हार्ट अटैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है. एक्सेस स्मोकिंग से क्या होता है? हमारे जो लंग्स होते हैं बच्चे वो इफेक्ट्स होते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? वो लेता है, जबकि क्या लेना चाहिए? ऑक्सीजन. ठीक है, और उसके अंदर ब्लड के अंदर चला जाता है. देन शुड बी प्योरिफाइड बाय ऑक्सीजन. इज स्पॉइल्ड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सेस इन इट. और क्या करता है? जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा आ जाएगी तो मिक्स हो जाएगी, तो वो क्या करेगी? इवन ऑक्सीजन को भी स्पॉइल करने लग जाती है. जो स्मोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सेस सफर्स करते हैं, कफ होता है उनको, अस्थमा हो जाता है, अच्छे से सो नहीं पाते वो. ठीक है, और इवन दूसरों को भी नहीं सोने देते. So everybody should avoid smoking. Then you can't stop yourself from smoking completely. तो क्या करना चाहिए? कुछ restrictions को भी follow करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं जनरली हम अपनी कंपनीज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को फोर्स करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं स्मोकिंग करना. तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए बच्चे. साथ में डोंट स्मोक इन द थिएटर. और कहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए? थिएटर के अंदर, चर्च के अंदर, रीडिंग रूम के अंदर, लिफ्ट में अगर आप हो. ठीक है, कोई ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे लोग असेंबल हो रखे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज. So exercise, some people think that exercise is a charm with magical power. It keeps our body fit and strong. But remember that mere exercise has no magic. Some other important things also are to be done with it. So there are different opinions of people about exercising. Some of them are given ahead. The best rule is to exercise when one feels inclined and never at any other time. If the desire for exercise is strong, do so by all means. So exercise क्या होती है? Exercise तो सबको पता है, चार्म लेकर आती है और एक मैजिकल पावर है. ऐसा ही सोचते हैं हम सब, और हमारी बॉडी को क्या करती है? फिट एंड स्ट्रॉन्ग. बट रिमेंबर दैट मेयर एक्सरसाइज हैज नो मैजिक.
तो क्या करते हैं, कई बार हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो भी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो आर टू बी डन विद इट। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और बिल्कुल एक्यूरेट पोस्चर के अंदर ही एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। द बेस्ट रूल इज टू बी एक्सरसाइज व्हेन वन फील्स इंक्लाइंड एंड नेवर एट एनी अदर टाइम। और डिजायर फॉर एक्सरसाइज इज क्या करती है, स्ट्रॉन्ग। डू सो बाय ऑल मीन्स। Little good can come of regular exercise which reduces life to a monotonous routine. On the other hand, if you hear the call of exercise, don't neglect it but just do it. You may be at home, in your office, in your car or at any other place. You may light exercise, step silently and may swiftly on the ball of the foot. Bracing of the muscles of glutes, flashy part of the leg and raising each knee as close as possible to the chin. So यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बताया है बच्चे कैसे हमें करना चाहिए। लिटिल गुड कैन कम ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज से। ठीक है, क्या हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर हम उसको रूटीन में लेके आते हैं, मतलब रूटीन के साथ करेंगे। अदर हैंड पर इफ़ यू हियर द कॉल ऑफ एक्सरसाइज सो डोंट नेग्लेक्ट इट। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यू मे बी एट होम, एट योर ऑफिस में होते हो, कई बार आप घर में होते हो, कार में होते हो, अदर प्लेसेस पर होते हो, तो भी आप ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप लाइट एक्सरसाइज बैठे बैठे भी या फिर खड़े होकर भी कर सकते हो, जिससे जो आपकी मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, मसल्स ऑफ काल्स के लिए फ्लैशी पार्ट होते हैं हमारे लेग के, उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव होती हैं और बेहतरीन भी होती हैं बच्चे। ठीक है, सो बट अदर से दैट द रेगुलर एक्सरसाइज एट अ प्रॉपर टाइम इज वेरी नेसेसरी टू कीप द बॉडी फिट और वर्क. Exercise should be included in our daily routine but not in big doses. Everyone is not an athlete or a weightlifting champion. A regular and mild exercise is very necessary. A morning walk of a kilometer or 2 a day would help. Climbing a couple of flights in office or at home would not hurt either. The main purpose of exercise is to keep the joints of our body moving, to check the fatty deposits in the arteries and to keep it active. Regular exercise causes new blood pathways to develop. So exercise से क्या benefit होने वाला है बच्चे? तो एक्सरसाइज से सबको पता है कि हम फिट हो पाएंगे, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड पाथवेज है, वो डेवलप होगा. ठीक है, और साथ में क्या अच्छा होता है, मतलब हम कहीं पर भी हैं बच्चे, घर पर हैं, ठीक है, और कहीं पर ऑफिस के अंदर हैं, तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है एक्सरसाइज करने का, टू कीप द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी मूविंग, ताकि जितने भी जॉइंट्स हैं अपने, है ना, फिंगर्स हैं, लेग है, प्रॉपर तरीके से मूव करते रहे. तो उसके लिए हमें छोटी छोटी एक्सरसाइज रेगुलर ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम एक्टिव रह पाए. ठीक है, नेक्स्ट इज ओवरस्ट्रेन. So overstrain and undue fatigue are most dangerous for our health and are to be avoided. Don't do too much work. It is the only trustworthy medicines to keep the body fit for a long time. Whenever you feel you are working too hard, stop for a while and read a book or go and talk to somebody or buy a paper at the corner and again start your business. Thousands of men are living long in England who adopt this reasonable plan. There should be moderation in pleasure also. Now, more than half a dozen dinner parties, dances, theatres, cinemas, etc. should be attended in a single week. So, overstrain means क्या होता है बच्चे? यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है fatigue, उसका मतलब होता है tired. Okay? मतलब ज़्यादा जब क्या करते हैं हम ओवर वर्क करने लग जाते हैं. ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है, काफ़ी डेंजरस होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए. वी शुड अवॉइड इट एंड डोंट डू टू मच वर्क, क्योंकि वो कैसा होता है, कहीं ना कहीं जब ज़्यादा काम करते हैं तो हम थकान फील करते हैं, हमारी बॉडी कैसी होती है, वैसी एनर्जेटिक नहीं रहती ना जैसी होनी चाहिए, हम काफ़ी लो फील करते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें किसमें, डिसीज़ में कन्वर्ट होने लग जाती है. तो ऐसा नहीं करना, उसके लिए हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए. ठीक है, बुक पढ़नी चाहिए,
वॉक के लिए जाना चाहिए, कोई पेपर आपने लिया, ठीक है, उसको रीड करने लग जाओ। मतलब अपना जो आपका एक मेन रूटीन है उससे थोड़ा हटकर आपको काम करना चाहिए जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, ऐसा वर्क आपको चूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी बड़ा अच्छा दे रखा है कि आपको डिनर बाहर करने के लिए जाना चाहिए, कभी आप पार्टीज़ में जाना चाहिए, लेकिन डांस के लिए, थिएटर्स के लिए, सिनेमास के लिए, लेकिन ये क्या बताया यहाँ पर, सिंगल वीक में, ठीक है, मतलब ऐसा है वीक में 15 डेज में आपको एक आउटिंग करनी चाहिए जिससे आप रिफ्रेश फील करोगे। स्लीप, yes, for good health, sleep also is another important consideration. Sound sleep of 6 or 7 hours is sufficient for an ordinary man, but it may vary from man to man. A man who does hard physical labor needs more sleep. During sleep, many of our organs and systems are at rest. Thus, the man, when he wakes up, feels refreshed and does his work with more vigor. Without proper sound sleep, he feels himself dull and inactive throughout day. He has no interest in any work. Avoid sleeping in daytime as far as possible. Some people are habitual of having a little sleep after lunch and in buses and trains. It also relaxes them. If you sleep for a very long time, it means your body does not get nourishment for a longer period and it weakens and the tissues, lowers and vitality, loosen the cardiac follicles and the influence the vitamins also remember. So यहाँ पर बच्चे स्लीप की इंपॉर्टेंस को बताया गया है, क्योंकि हमारी अगर गुड हेल्थ है तो गुड हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं बिहाइंड में होता है कि हम अच्छी नींद ले रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, ठीक है। सो साउंड स्लीप हमारी होनी चाहिए 6 और 7 आवर्स, वो सफिशिएंट होती है बच्चे ऑर्डिनरी मैन के लिए, ठीक है। और ये डिपेंड भी है मैन टू मैन। अ मैन हु डज नॉट हार्ड फिजिकल लेबर, क्योंकि हमारा डिपेंड होता है काम पर, हम वर्क कैसा कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा वर्क है काफ़ी लाइट वर्क कर रहे हैं तो हमारी स्लीप उस पर डिपेंड हो जाती है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो कैसे सोते हैं, बिल्कुल साउंड स्लीप सोते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग स्लीप बहुत सारे हमारे मैनी ऑफ आवर ऑर्गन्स जो है, सिस्टम है हमारा, वो रेस्ट पर चला जाता है, ठीक है। और द मैन व्हेन ही वेक्स अप, जब हम उठते हैं तो कैसा फील करते हैं, रिफ्रेश्ड एंड डज हिज वर्क विद मोर विगर, और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर हम अपने काम को करते हैं। सो विदाउट प्रॉपर साउंड स्लीप ही फील्स हिमसेल्फ डल एंड इनएक्टिव थ्रू आउट द डे, यही होगा। देन ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन एनी वर्क। अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम, तो क्या करना चाहिए, डे टाइम में हमें सोना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इवन बहुत सारे लोग होते हैं उनको क्या पसंद होता है कि लंच किया, ठीक है, या फिर डिनर कर लिया तो उसके बाद क्या करना, बसेस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर सो जाते हैं, तो उनको वहाँ पर भी रिलैक्स फील होता है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए, एक छोटी सी अपनी लिटिल स्लीप होनी चाहिए, तो उसके बाद बॉडी कैसी हो जाएगी, काफ़ी नॉरिशमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारी जो बॉडी है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर पाए। और ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना चाहिए, यस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मीन्स हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठेंगे तो जल्दी से काम करेंगे, जल्दी अच्छा काम करेंगे तो हमारी बॉडी कैसी होगी, healthy, wealthy and wise. Whenever you go to bed, your mind should be free of excitement, worries and ideas of any kind. Before doing so, read newspaper or any book till sleep overpowers you. Thus, never allow yourself to get overexcited and never allow yourself to be feel bored. Always enjoy the company of good people or good books and shun anger, greed, envy, etc. Always be cheerful and never worry for anything. Then you will enjoy the fruits of your life and will live longer. So, ये क्या चीज़ें बताई गई हैं, सुबह जल्दी उठना and your mind should be free of excitement, वरीज और आइडियाज़, और बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करते हुए हम क्या करते हैं, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बुक्स रीड करनी चाहिए, ओके। दस नेवर अलाउ योर सेल्फ टू गेट ओवर एक्साइटेड, किसी भी काम को लेकर बच्चे कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं फील करना चाहिए कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा। जब कुछ फील नहीं होगा तो आप क्या होगे, बोर फील करोगे। सो हमेशा कंपनी को इंजॉय करना चाहिए
और कंपनी में लोग कैसे होने चाहिए, गुड पीपल, और गुड बुक्स को भी इंजॉय करना चाहिए ताकि आपको भूख भी लगे, आपको नींद भी आए और आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाओ। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने पढ़ी इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंस बहुत सारी चीज़ें देखी, बैलेंस डाइट को लेकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ही फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स थे और जो आपको फॉलो आई होप आप करेंगे ही। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों। आई होप अच्छे से करेंगे। और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।